Hi everyone. So since the phase one of RBI Grade B is conducted, I have been getting a lot of queries regarding the ESI static because I do understand that people leave ESI after phase one. They think that okay we will be covering it after phase one क्योंकि static में से तो बहुत ज़्यादा questions आते नहीं हैं, which is a fact, right? Which is a fact that they do not ask much questions from the ESI static portion, and behind that there is a logic as well, and we'll try to understand that logic, that why they don't ask much static questions from the ESI syllabus of ESI static syllabus. Okay, so in this particular video guys, I'm gonna explain you that what is the smart way to tackle the complete ESI, not only the static one. ठीक है, पूरे ESI के बारे में बात करेंगे. I'll take your 5 to 7 minutes and I believe you will be able to understand the smart way to tackle the ESI, specifically the स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार पीछे का ग्लिम्स दे देता हूँ पिछले 2-3 सालों का, स्पेशली द ऑब्जेक्टिव पार्ट जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते रहे हैं. तो दिस इज फॉर द ईयर 2023. गवर्नमेंट स्कीम्स 14 क्वेश्चंस, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस 4 क्वेश्चंस, एंड करंट अफेयर्स लाइक इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, पोर्टल्स, एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, डेज, जीडीपी फोरकास्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे से 9 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक के देयर वर 3 क्वेश्चंस. Right, there were 3 questions from static. ऐसा नहीं है कि 0 थे, there were 3 questions from static part. Right, I'm not asking you to eliminate the complete static part, you have to cover it, but I'll tell you how. Again, in 2022 government schemes 14 questions, reports and indices 4 questions, जो बाकी miscellaneous current affairs है वहां से 11 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक से कितना क्वेश्चन था? 1 क्वेश्चन था. ठीक है, केवल एक. और उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक 2021 की बात करते हैं, सो गवर्नमेंट स्कीम देयर वर 14 क्वेश्चंस, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 8 क्वेश्चंस, एंड स्टैटिक से एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चंस थे. एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था. ठीक है, और उसके बेस पे 4 क्वेश्चंस बनाए थे आरबीआई ने, एंड दैट वाज बेस्ड, द टॉपिक वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये तो ट्रेंड है जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसका. ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करता हूं तो दे आस्क मिक्स क्वेश्चंस, some questions from current affairs, some questions from static, some questions from government schemes. लास्ट ईयर 2024 में गवर्नमेंट स्कीम्स का क्वेश्चन पूछा था, 2023 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से और भी इधर उधर की रिपोर्ट से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे. ठीक है जी, क्लियर है. तो ये तो हो गया ट्रेंड. अगर हम इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, दैट कैन बी डन थ्रू 3 topics. One is government scheme, one is annual reports and surveys, that is reports and indices, and third is general current affairs or current affairs. ठीक है, current affairs here in case of ESI includes PIB plus general current affairs. याद रखना general current affairs भी करके जाना है, because in PIB you do not get these GDP forecasting, you do not get these important days and awards things. ठीक है, you have to learn it from your general current affairs magazine. And yes, they do ask important awards and important days in ESI as well if it is something related to economic and social issues. ठीक है, ऑल्दो 1-2 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन यार 30 क्वेश्चन है, 30 में से एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रेशो होता है. ठीक है, 30 में से एक क्वेश्चन भी अगर इनमें से आ रहा है तो वो बहुत बड़ा इशू है. वी कांट एलिमिनेट इट, वी कांट इग्नोर इट. राइट, तो पीआईबी और जनरल करंट अफेयर्स, तो ऑब्जेक्टिव वाला एरिया तो आपका भाई इसी से हो जाएगा, 3 टॉपिक से, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज, एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, current affairs here means PIB and general current affairs for the last 6 months PIB and for the last 3 to 4 months general current affairs. That would be good enough, right? अब अगर मैं आता हूं कि आपको एक्चुअली में ESI में करना क्या क्या है, तो एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है. सबसे पहले स्कीम्स इन न्यूज, जो कि पिछले 6 महीने में न्यूज में थी. ठीक है, और प्लस ऑफ कोर्स लैंडमार्क स्कीम्स आपको इग्नोर नहीं करना है. लैंडमार्क स्कीम्स के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी एक लिस्ट दे चुका हूं ऑफ द आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 150 इंपॉर्टेंट स्कीम्स की, वो आपको करके जानी है. ठीक है, अब आप कहोगे यार 100 क्वेश्चन 100 स्कीम्स कैसे करेंगे, तो भाई मत करो फिर. ठीक है, फिर मत करो, फिर छोड़ दो. फिर तो यह है, क्योंकि देखो लोग करके जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू डू इट. ठीक है, उसके अलावा इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स ओनली द इंपॉर्टेंट वन सारे. अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि लोग 500-500 पेजेस की पीडीएफ जो है वो पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स के लिए, इंडाइसेस के लिए. भाई क्यों पढ़नी है? मैंने आगे आपको एक इंडाइसेस रिपोर्ट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दी है, बस वो पढ़ लो, उसमें से हो जाएगा. और वैसे भी इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ आरबीआई नो, सो दे हैव मेंशन्ड ओनली 5-6 रिपोर्ट्स. जो ESI का सिलेबस है उसमें 5-6 रिपोर्ट्स मेंशन है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है. ठीक है,
रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑन आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये भी आरबीआई की रिपोर्ट है, वो है इसके अंदर। सो 5 से 6 रिपोर्ट्स मेंशन है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमेशा अगर आप देखोगे आप तो वहीं से आते हैं। कभी कभी होता है डेफिनेटली दे गेट आउट ऑफ दीज डिफाइंड ऑलरेडी डिफाइंड रिपोर्ट्स, बट उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको करके जाना है ऑफ कोर्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू फॉलो पीआईबी एंड जनरल करंट अफेयर्स, एंड डू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, अपना दिमाग मत चलाओ, जनरल करंट अफेयर्स भी करके जाना है। एंड स्टैटिक के लिए ओनली द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड हाउ कैन यू टैकल रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं सिलेबस पे लेके चलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए ये सारे स्टैटिक के सिलेबस पे आते हैं। देखो भाई आराम आराम से सिलेबस देखो। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये जो दो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाने हैं स्टैटिक से। अब स्टैटिक के लिए या तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, जैसे हमने अभी फेज 2 का कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो उसमें एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन नोट्स भी हैं और लेक्चर्स भी होंगे। क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, ईएसआई की क्लास स्टार्ट होगी। या नहीं तो आप कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ईएसआई के लिए आप या तो नितिन सिंघानिया की बुक ले लीजिए, या कैन गो फॉर नितिन सिंघानिया और रमेश सिंह। आई वुड सजेस्ट यू नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह अब पुरानी हो चुकी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनमें से ये वाले चैप्टर्स करके जाओ। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में वही आएगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब आएगा। और नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो पढ़ के जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। अब देखो क्या आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में rather than asking that what is the revised international poverty line, they are going to ask about the types of poverty. What do you think? If you are an examiner, you have two options. One, that you need to ask that what is the revised international poverty line, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक ने करा था $2.15 per day to $3 per day. या फिर आप ये पूछोगे कि भाई what are the types of poverty, जहाँ पे आप ये पूछोगे भाई what is the absolute poverty, what is the relative poverty. Of course not. तो पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो आपको करंट ही पढ़ के जाना है, करंट एनुअल, करंट रिपोर्ट्स, करंट सर्वेज, करंट स्कीम्स, दैट इज इट। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या पढ़ोगे, देखो अब इसको थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करना है आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इश्यूज में अगर ऑब्जेक्टिव में वो पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछेगा, या फॉर दैट मैटर बहुत ज्यादा कुछ उसने पूछा तो वो जो जितने भी हमारे कन्वेंशन हुए हैं, जैसे कि UNFCCC हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, उससे आपको ये पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और कौन से ईयर में इन कन्वेंशंस को एक्सेप्ट किया गया या पास किया गया, वो जरूर करके जाना, दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपको एनवायरमेंटल इश्यूज में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इतना आना चाहिए कि आप 400 वर्ड या 600 वर्ड्स का आंसर लिख सको, बस उतना ही पढ़ना है। दैट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, what are the dimensions of sustainable development, how it can be achieved, what are the sustainable development goals and what is the progress on sustainable development। कुछ 5-6 पॉइंटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है जी, ओके। अब आ जाओ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, देखो मॉनेटरी पॉलिसी तो आप जो भी आरबीआई के एग्जाम से पहले जो भी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होगी फेज 2 से पहले वो पढ़ के जाना, ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में आपको बेसिक्स पढ़ के जाने की, व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी, अगेन फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या डायमेंशन है, बेसिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस, यू आर ऑलरेडी कवरिंग इट देयर, ओके। रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक इन डेवलपमेंट प्रोसेस, व्हाट डू यू थिंक, इसमें से क्या स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज अ करंट बेस्ड टॉपिक, 100% करंट बेस्ड टॉपिक, कि किसी इंडियन बैंक ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है, आरबीआई ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है दैट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी आप करंट अफेयर्स में, फाइनेंस करंट अफेयर्स में और पीआईबी में या फिर जनरल करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे हो, क्लियर है। पब्लिक फाइनेंस में कुछ नहीं करना आपको, पब्लिक फाइनेंस और पॉलिटिकल इकोनॉमी में कुछ मत करो, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कर लो, बेसिक्स पढ़ लो फाइनेंस कमीशन के, दैट्स इट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्रीज, इसमें भी अगेन आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना कि भाई 47 से पहले क्या था, 47 के बाद क्या हुआ, 91 के बाद क्या हुआ, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्या हुआ, नहीं। एक 600 वर्ड का आंसर, मतलब व्हाट, अगर मैं आपसे पूछता हूं हाउ या व्हाट डू यू नो अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया,
तो एक 600 वर्ड का आंसर आपको आना चाहिए। अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, वहां पे आपको सारे डायमेंशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाल देने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ करंट एग्रीकल्चर, कितने लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, कौन कौन से इनिशिएटिव्स और स्कीम सरकार ले रही है, क्या इश्यूज है एग्रीकल्चर के और उनको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं। सेम गोज फॉर इंडस्ट्रीज एंड सेम गोज फॉर सर्विस सेक्टर। इस तरीके से एक 600 वर्ड का आंसर 1000 वर्ड्स अपने तैयार कर लो, तो अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो हो गया। स्टैटिक ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ बन नहीं सकता, बनेगा तो करंट का ही बनेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर कोई हुआ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है तो वही बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 के, वो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो क्यों, हमें हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी क्यों आई थी, और फिर हमने रिफॉर्म्स में क्या क्या किया, पूरा एलपीजी मॉडल अच्छे से। उसी के अंदर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लोगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में ऑफ कोर्स आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 पढ़ के जाना है। लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, तीन मेंशन कर रखी है, और फिर साथ में लिख रखा है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। क्या क्या इसकी कब फॉर्म हुआ था, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, क्या क्या कैसे ये फंक्शन करता है, क्या क्या इसके अलग अलग फंक्शंस है। इन केस ऑफ आईएमएफ कोटा क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, ये सारी चीजें। इन केस ऑफ वर्ल्ड बैंक उसके 5 आर्म्स होते हैं, उनके पांचों के क्या क्या फंक्शंस है, सब कुछ। डब्ल्यूटीओ के केस में कौन कौन सी सब टाइप ऑफ सब्सिडीज जो है, ग्रीन, ब्लू, एम्बर, ये सारे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ के जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे से ज्यादा का काम है, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे आपको इसके नोट्स बना के पढ़ने में, याद करने में, राइट। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो रीसेंट न्यूज में है अगर कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, ये बिल्कुल करंट बेस्ड टॉपिक है, इसमें कुछ भी स्टार्टिंग नहीं पूछने वाले वो लोग, ठीक है। अब आते हैं लास्ट के कुछ टॉपिक्स पे। यहां से अगर क्वेश्चन आया दोस्तों, सो डेफिनेटली दैट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव। मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, क्या डायमेंशन है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। 1000 वर्ड का आंसर, 600-700 वर्ड का आंसर बना के रख लो। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, इंडिया का क्या डेमोग्राफी है, कब वो चेंज होने वाला है, क्या क्या रिसेंट रिपोर्ट्स उसको सपोर्ट करती है। अगेन एक 600 वर्ड का आंसर बना के रख लो। सेम गोज फॉर अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, एंड सेम गोज फॉर जेंडर इश्यूज, एंड सेम गोज फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, जेंडर, ये जो लास्ट के 1 2 3 4 5 टॉपिक्स है, इनके लिए कुछ मत करो। ये क्या होते हैं, इनके क्या डायमेंशंस है, इनके क्या फायदे नुकसान है, और कैसे उन फायदे नुकसान से हम दूर रह सकते हैं। और अगर कोई रीसेंट बात हुई है तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीकल्चरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो एक रिपोर्ट आई थी अभी, यूएनएमआई इंडेक्स, आपने सबने पढ़ा होगा, आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट था या ह्यूमन डेवलपमेंट, किसी का एक का पार्ट था। तो मल्टीकल्चरलिज्म में यूएसए इज नॉट परफॉर्मिंग, यूएसए इज एट द बॉटम। तो वहां पे आप उस रिपोर्ट का हवाला दे सकते हो कि मल्टीकल्चरलिज्म पूरी दुनिया तो प्रमोट कर रही है, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए वही नहीं प्रमोट कर रहा, राइट। सिमिलरली डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो पीक पे पहुंचेगी 2060 में 170 करोड़, और उसके बाद नीचे गिरना शुरू करेंगे हम, ठीक है। या फिर नीति आयोग ने बोला है कि 2047 में मेजोरिटी ऑफ द जनता हमारी ओल्ड एज की हो जाएगी। तो इन टॉपिक्स को करंट के साथ रिलेट करके इनके अंदर बिल्कुल आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, एक 600 वर्ड का आंसर तैयार करके रख लो, बात खत्म, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू कैन टैकल ईएसआई। और अगर और कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, सो यू कैन गो विद दिस आरबीआई ग्रेड बी 2025 फेज 2 क्रैश कोर्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर भी अगर आपको ईएसआई में कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक you very much for being with me. Goodbye, take care, and I wish you all the best for the upcoming phase 2 examination. Yes.